اور اب یہاں نظر ڈالیں گے سیلابی صورتحال پہ۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال شدت اختیار کر گئی۔ بورے والا میں موزہ جودیکا کی بستی غلام علی کے قریب حفاظتی بند ٹوٹ گیا۔ متعدد بستیاں زیر آب، درجنوں بستیوں کا زمینی راستہ منقطع، سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ چکی ہیں، مکین مشکلات سے دوچار ہیں، ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مزید جانتے ہیں کاشف چودھری سے۔ جی بالکل، بھارت کی جانب سے دریائے ستلج میں پانی چھوڑے جانے کے بعد جو ہے وہ دریائے ستلج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی جو ہے وہ متعدد بستیوں میں داخل ہو چکا ہے، جس کے باعث جو ہے وہ متعدد بستیوں کا زمینی رابطہ یہ منقطع ہو چکا ہے۔ اس وقت میں موزہ عبداللہ آکوکا کے مقام پر موجود ہوں۔ یہاں پر متعدد بستیاں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں یہاں پر متاثرہ خاندان کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر جو ہے ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں اور متاثرہ خاندانوں کو یہاں سے ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ یہاں پر علاقہ مکین موجود ہیں۔ جی کیا کہیں گے، کون کون سی بستیاں یہاں سے پانی داخل ہوا ہے؟ شمید جرے دی بستی، نظام جرے دی جی، اللہ رکھے جرے دی، اعظم خان جرے دی، فیض خان جرے دی، اگو شیخ خان دی بستیاں جی 3-4 اتنے پیچھے چڑویاں دی شکندہ چڑو دی بستی ہے جی جی پانی دے وچ ہیں جی اتنے کشتی والے موجود ہیں جی۔ اچھا آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر کون کون سی فصلیں جو ہیں جن میں پانی داخل ہوا کہ کون کون سی فصلوں کو نقصان ہوا ہے؟ اتنے جی فصلوں کا نقصان تو پٹھا باڑا تے مکئیاں تے سارے نقصان ہوا جی، تیڑی جی۔ جی بالکل، آپ نے سنا یہاں پر متعدد بستیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے سینکڑوں ایکڑ جو اراضی جو ہے وہ اس میں کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں سیلابی پانی کے باعث جو ہے وہ جس میں تل اور مکئی اور جو جانوروں کا چارہ شامل ہے۔ یہاں پر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ساؤکا اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ 13 ریلیف۔ آپ کا تفصیل آگاہ کرنے کے لیے اب خبر شامل کریں چشتیاں سے۔ ستلج کے مقام آکوکا پر سیلابی ریلی نے تباہی مچا دی۔ سیلاب کا پانی کھڑی فصلوں میں داخل، فصلیں تباہ، مقامی لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں زاہد حسین ہاشمی سے۔ بھارت کی جانب سے جو ابھی جاریت کا سلسلہ یہ جاری ہے، اگر بات کی جائے تو میں اس وقت موجود ہوں چشتیاں کا جو مقام ہے ستلج کا عبداللہ آکوکا، جہاں پر جو دریائی علاقہ ہے اس بیلٹ کے اندر جتنا بھی 71,000 کیوسک کا جو پانی گزر رہا تھا وہ فصلوں کی جانب اس کا رخ ہو چکا ہے۔ فصلوں کی جانب رخ ہونے سے کافی فصلیں متاثر ہو چکی ہے۔ اس دریائی ریلے نے تباہی مچا دی ہے۔ میرے ساتھ یہاں کے مقامی لوگ موجود ہیں جن کو کافی نقصان ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، کس قدر وہ پریشان ہیں، کس حد تک ان کی فصلیں پانی کی لپیٹ میں آ چکی ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بھائی جان کتنا نقصان ہوا آپ کا، کتنی رقبہ جو پانی کی لپیٹ میں آ چکا ہے؟ سر جی 15 کلے ہماری تیلی ہے وہ ڈوب گئی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، چاروں طرف پانی پانی ہے۔ تو یہ سامان آپ کے سامنے ہے جو ہم لے کر آئے ہیں وہاں سے، تو وہ ہماری فصل ہے جو وہی ڈوب گئی ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ انتظامیہ آپ کے ساتھ کچھ تعاون کو کر رہی ہے؟ ہاں جی کر رہی ہے۔ اچھا بھائی جان آپ بتائیں آپ کہاں سے آئیں، کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ عبداللہ آکوکے کے رہنے والے ہیں، ادھر سے ہیں۔ یہ ہمارا نقصان ہوا ہے، تیلی یہاں ڈوب گئی ہے 5-6 ایکڑ، اور یہ جو جانوروں کا چارہ وغیرہ فصل ہے ساری ڈوب گئی ہے۔ ہاں جی، یہ شہری یہاں کے جو علاقہ مکین لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 ایکڑ رقبہ جو ان کی تلی تھی وہ بھی دریائی علاقے کے پانی میں ڈوب گئی، اور یہ بھائی ہیں ساتھ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جانوروں کا چارہ تھا وہ بھی دریائی پانی کے اندر ڈوب چکا ہے۔ یہ ان کا سامان ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو یہ بیڑے کے اوپر ان کا سامان پڑا ہوا ہے۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں جو ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہیں، تمام سامان کو انہوں نے ایک سیف جگہ پر مقام پر منتقل کیا ہوا ہے، اور نقصانات کا جو سلسلہ ہے وہ تو چل رہا ہے کیونکہ پانی کی سپیڈ جو اس قدر تیز ہے جس طرف اس کا نقصانات کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ کاشف چودھری۔ باول نگر دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کی بات کرتے ہیں۔ بڑا ریلا، بھوکا پتن، آکوکا اور تخت محل کے مقام سے گزر رہا ہے۔ زمینی کٹاؤ جاری، فصلیں زیر آب۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے۔ یا بالکل دریائے ستلج میں اس وقت نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے، اور روہی ٹیم اس وقت دریائے ستلج میں اس مقام پر موجود ہے جہاں پر اس وقت پانی کی جو سطح ہے وہ 50 فٹ تک بھی بتائی جاتی ہے۔ موزہ آکوکا اس علاقے کا نام ہے۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت دریائے ستلج میں جو پانی کا بہاؤ تیزی سے ہے، 50 فٹ کی سطح پر ہم موجود ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ریسکیو ٹیم موجود ہے، ان سے بات کر لیتا ہے۔ عتیق صاحب بتائیے گا 50 فٹ پانی کی اس وقت موجود ہے اس سطح پر؟ جی یہ اپنا موزہ آکوکا کا پتن ہے، یہاں پہ 50 فٹ پانی ہے اور کہیں 50 سے بھی زیادہ ہے،
और इस तरफ ये इलाका हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कटाव आ रहा है तो हम कटाव की तरफ आपको लेके चलते हैं। अच्छा, तो मनीष ये बताइए कि रेस्क्यू टीम जो है वो पूरी, हम देख रहे हैं कि लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है, लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी सैलाब फिलहाल पीछे से पानी की सतह कम हो गई है, लेकिन जो आगे रेले आगे गुजर चुके हैं हेड सुलेमान की से वो तो आगे आएंगे। तो कुछ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है। तकरीबन 500 से ज़्यादा लोगों को हम वो एवैक्यूएट कर चुके हैं यहाँ से। हाँ जी बिल्कुल, ये थे रेस्क्यू तर्जमान जो कि बता रहे थे कि इस वक्त मौजा आकूका के मुकाम पर कहीं 50 फुट पानी की सतह है और कहीं इससे भी ज़्यादा है। तकरीबन जो है 500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कि ज़मीनी कटाव में भी तेज़ी आई है और इसके अलावा फसलें भी ज़ेरे आब आ रही हैं। तो इस तरह जो है वो रेस्क्यू टीम पूरी तरह से इनकी जानिब से फसलें भी ज़ेरे आब आ गई हैं। कासिम अली शेख, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर पानी की सतह में कमी। हेड पंजनत पर पानी की आमद 42,834 और इखराज 28,334 क्यूसेक रिकॉर्ड। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक हेड पंजनत पर पानी की आमद 12,219 क्यूसेक कमी वाक़या हुई है। आपको बता रहे हैं उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर पानी की सतह में कमी। हेड पंजनत पर पानी की आमद 42,834 और इखराज 28,334 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। मंगला और तरबेला डैम में पानी सतह बतदरीज बुलंद। मंगला डैम में पानी 1,20,695 जबकि हद 1242 फीट है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। शिवकुल जुनून पर जाम में अगर बात की जाए सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, तो सैलाबी सूरत हाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला पर, और यहाँ पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पानी का जो बहाव है वो गुज़श्ता दिन की इस वक्त कदर कम है। हालात जो है नॉर्मल होते चले जा रहे हैं। अब अगर बात की यहाँ पर जो रेस्क्यू जहाँ से कैंप लगाया गया था वो भी आज यहाँ पर नहीं लगाया गया है। मामलात ज़िंदगी जो है मामूल के मुताबिक आते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए डैम के हवाले से, जो रिजर्वायर्स है वहाँ पर, तो डैम्स में यानी कि मंगला और तरबेला जो कि हमारे जनूबी पंजाब को बहर रास्त जो है इम्पैक्ट करते हैं, खासतौर पर मुल्तान जोन को, तो मंगला और तरबेला डैम पर आज जो पानी की सतह उसमें बतदरीज इजाफा हुआ। अगर बात की जाए मंगला पर पानी की सतह, तो मंगला पर आज जो पानी की सतह जो है 1206.95 फीट जो है रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी हद जो है वो 1242 फीट जो है इसकी हद है। इसी तरह बात की जाए तरबेला डैम की, तो तरबेला डैम पर भी जो पानी की सतह बुलंद हुई है। तरबेला डैम पर अभी जो पानी की सतह जो है वो 15.67 जो फीट पानी की हद जो है पहुंच चुका है पानी। अगर बात की इस हवाले से, तो पानी का जो सतह बढ़ने से जो डाउन स्ट्रीम पानी का अखराज उसमें इजाफा हो रहा है। तरबेला का जो डाउन स्ट्रीम अखराज है वो 1,70,000 है, जबकि मंगला का जो डाउन स्ट्रीम अखराज है वो 10,000 क्यूसिक पानी है। इससे अगर बात की जाए इसके साथ दीगर जो अहम है कादराबाद, तो कादराबाद खासा अहमियत कामिल है। कादराबाद पर आज जो पानी का डाउन स्ट्रीम अखराज है वो 53,063 क्यूसिक है। इस तरह बात की जाए मराला के मकाम पर, तो मराला के मकाम पर पानी का अखराज है वो 66,942 है। जबकि अगर बात करें खांकी के मकाम पर, तो खांकी के मकाम पर भी जो पानी का बहाव है उसमें 5 से 7,000 क्यूसिक इजाफा, और अभी जो वहाँ पर पानी का डाउन स्ट्रीम अखराज है वो 63,861 क्यूसिक है। इसी के पेश अगर बात की जाए जनूबी पंजाब और मुल्तान में, तो आने वाले दिन में जब त्रेमू पर पानी पहुंचेगा तो वहाँ से हेड मोहम्मद वाला और दीगर मकाम तक पहुंचा चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी सूरत कर नॉर्मल है। बताइए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नुमाइंदगान की जानिब से इरिगेशन। अली रियाज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं कोट अदू में सैलाबी सूरत हाल, दरियाए सिंध के पानी में उतार चढ़ाव जारी है। मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना से। बिल्कुल हालिया होने वाली बारिशों के पेश नज़र जो है दरिया सिंध में कहीं पे कटाव तो कहीं पे पानी का बहाव तेज जारी है। लेकिन इस वक्त जो है हेड तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। इस वक्त हेड तोसा बैराज के मकाम पर जो पानी की आमद है वो 1,90,163 क्यूसेक, और उसके साथ साथ जो उसका अखराज है 1,72,163 क्यूसेक। उसके साथ दरिया सिंध से तोसा बैराज के मकाम पर 3 नहरें निकाली गई हैं, जो मुजफ्फरगढ़ केनाल, टीपी लिंक केनाल और डीजी खान केनाल हैं। इस वक्त जो है मुजफ्फरगढ़ केनाल में 8,000 क्यूसेक, डीजी खान केनाल में भी 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। उसके साथ साथ टीपी लिंक केनाल जो सतलुज में जाती है और चनाब के रिलेटेड वो नहर है, उस नहर में 2,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस वक्त जो है हेड तोसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3,000 क्यूसेक पानी कम हो रहा है। ताहाल हेड तोसा बैराज के मकाम पर किसी भी किस्म के फ्लड के कोई खदशात लाक नहीं है। लेकिन जो बेट के एरियाज हैं वहाँ पर दरिया ने कटाव किया हुआ है, कुछ लोगों के घर भी दरिया बुर्द हुए हैं।
लेकिन जो दरिया का लेवल है वो इस नॉर्मल और मामूल शफकत के मलाना मुताबिक। अपडेट के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुमकिन सैलाब के पेश नज़र सांप के काटने की वैक्सीन तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बहावलपुर और रूरल हेल्थ सेंटर्स पर मुहैया कर दी गई हैं। मज़ीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र महकमा हेल्थ की तैयारियां जो हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई। इस हवाले से जो एंटी स्नेक वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी भी मुकम्मल कर ली गई है और हर RHC पर मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 25 जो वैक्सीन है उसका रखा गया है। हमारे साथ डिप्टी DHO मौजूद हैं डॉक्टर खालिद चन्नर सर, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी तैयारी है, कितने कैंप्स कायम किए गए हैं और जो एंटी स्नेक वैक्सीन है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दरिया सतलुज में अभी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। पानी 10 से 12 हज़ार क्यूसेक पानी चल रहा है और मज़ीद उसका बहाव बढ़ रहा है। तो जहाँ तक हमारी तैयारी के हवाले से है तो हासिलपुर, खैरपुर टामे वाली, बहावलपुर सिटी, सदर का जो एरिया आता है तो सब में ही मेडिकल कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए हैं। अब तहसील अहमदपुर की अगर हम बात करते हैं तो 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं और हमारे वहाँ 2 RSCs बल्ला झुलन जो कि UC बन वाला हमारी लास्ट UC है उसमें एंटी जो स्नेक विनोम है, इसके अलावा हमारी एंटी रेबीज़ दोनों वैक्सीन्स बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और हमारे RSCs पे 25-25 तक की हमने वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करवाई हुई। हमारे THQs लेवल पे 50 है। अगर इसके अलावा भी अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे फ्लड कैंप्स हैं वो दिन रात का 24/7 है और वो काम कर रहे हैं। कोई मेडिसिन का इशू नहीं है और किसी किस्म की वैक्सीन की शॉर्टेज का इशू नहीं है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ्लड की सूरत हाल नहीं है, लेकिन अगर कोई होगा तो हम इंशाल्लाह उसको मैनेज करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल जी, अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसको मैनेज करने के लिए मुकम्मल तैयारियां महकमा हेल्थ की तरफ से कर ली गई हैं। जो स्नेक वैक्सीन है और साथ साथ जो एंटी रेबीज वैक्सीन वो भी वहाँ पर पहुँचा दी गई है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करें बहावलपुर से, जहां पर फिलहाल सैलाब का खतरा नहीं है। मुमकिन सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 9 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए जा चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर का कहना है कि दरिया के रास्तों में बने घरों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। आपको बता रहे हैं बहावलपुर में फिलहाल सैलाब का खतरा नहीं है। दरिया के रास्तों में बने घरों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज, बालाई इलाकों में बारिश से सैलाब का खतरा टल गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, इस वक्त जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल भी है और 15 जुलाई से मानसून स्पेल का आगाज़ भी हो चुका है। इस हवाले से मौसम जो है वो सैलाबी सूरत हाल पर कितना असरअंदाज हो सकता है और जो स्पेल है वो कितना एक्टिव रहेगा, बारिशें कितनी हो सकती हैं, इस पर बात करने के लिए महकमा मौसमियत मुल्तान से डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अली मुलसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये स्पेल कितना एक्टिव रहेगा और सैलाब पर कितना इफेक्ट हो सकता है? हमारे अगर रीजन साउथ पंजाब रीजन की बात करें तो इसमें इसकी इंटेंसिटी मॉडरेट टाइप है, लेकिन बालाई इलाके जो कैचमेंट एरियाज़ हैं मेजर रिवर्स के, वहाँ पे इसकी इंटेंसिटी अच्छी होगी। तो वहाँ पे जो है वो दरियाओं में पानी जो है वो बिलो खतरे के मुकाम से नीचे नीचे ही रहेगा। इंशाल्लाह मॉडरेट टाइप फ्लड जो है हो सकता है। बारिशें तो अभी आज से ये स्पेल एक्टिव होगा, ये 3-4 रोज़ कंटिन्यू करेंगी। बालाई इलाकों में तो 5-6 रोज़ कर सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंशाल्लाह ये 23-24 तारीख तक जो है ना वो रहेगी बारिश वक्फे के साथ। वक्फे के साथ जो बारिशें यहाँ पे 23-24 तक रहेंगी और अगर इसके बात की जाए मॉडरेट बता रहे हैं सैलाबी सूरत हाल पर जो है। शकील सुल्तान, डॉलर की उड़ान के बारे में बात करते हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा, नई कीमत 287 रुपये हो गई है। यूरो 1 रुपये इजाफे से 316 रुपये का हो गया है। सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफे से 75 रुपये 20 पैसे का हो गया। आपको बताएं डॉलर की उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर की नई कीमत 287 रुपये हो गई। यूरो 1 रुपये इजाफे से 316 रुपये का हो गया। सऊदी रियाल 20 पैसे इजाफा महंगा 75 रुपये 20 पैसे का हो गया। शहरी महंगाई की चक्की में पिस गए। अलीपुर में आटे और चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया। आटा और चीनी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। आज बिल्कुल तहसील अलीपुर में आटा और चीनी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। आटे की अगर बात की जाए तो 15 किलो आटे की जो कीमत थी इससे कबल जो है 1750 रुपये थी, लेकिन 300 रुपये इजाफे के साथ उसकी कीमत जो है 2050 रुपये तक पहुंच चुकी है। चीनी की अगर बात की जाए
तो 120 रुपये में फ़रोख्त होने वाली जो चीनी थी उसकी फ़ी किलो कीमत जो है 30 रुपये इजाफे के साथ 140 से 50 रुपये तक पहुंच चुकी है। जो आवाम है वो परेशान है। आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो अशिया खुर्दोनोश ख़ास तौर पर आटा और चीनी खरीद करने के लिए कम पड़ चुकी है। इस वक्त मैं शहरियों के साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आटे की और चीनी की कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे? सर जी, हमारी हुकूमत से ये अपील है कि गरीब आदमी जो कि 2 टाइम का रोटी खाता है, अब उसका चूल्हा जलता है, आटे और चीनी के बगैर गुजारा नहीं है। वही चीज़ें सब चीज़ महंगे हो चुकी हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे जूस हो गया, चीनी, दालें, सब घी वगैरह, ये सब चीज़ महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। अगर हम और बात करेंगे चीनी, दालों वगैरह, मुर्गी तो हम ले नहीं सकते गरीब आदमी, मुर्गी हमारी पहुंच से बहुत दूर है। और उसके बाद हमारे पास जो दालें थी खाने के लिए वो भी उन्होंने हुकूमत ने महंगी कर दी हैं। हुकूमत से हम रिलीफ चाहते हैं, मेहरबानी करके हमें रिलीफ दिया जाए। बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना, जो शहरी हैं वो अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों पर नाला दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि भी अशिया खुर्दोनोश खासतौर पर आटा और चीनी खरीद करना हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। हुकूमत वक्त महंगाई के हवाले से नोटिस ले और महंगाई को कंट्रोल कर। अपडेट के लिए शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं शहर औलिया में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहर के ट्रैफिक सिग्नल खस्ताखाली का शिकार। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल ताहार गैर फाल। शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मजीद अपडेट कर रहे हैं राना बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में ट्रैफिक के मसाइल का हल ना निकाला जा सका। ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम दिखाई देता है। बात की जाए ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से तो इंतज़ामिया की जानिब से आज से कुछ माह पहले जो है ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए गए थे। मैं इस वक्त कचहरी चौक पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर अगर आपको दिखा सके तो ये कुछ माह पहले जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए थे, लेकिन ये फाल नहीं किए जा सके। लाखों रुपए की लागत से लगाए गए थे। अब जो है ये खस्ता हाली का शिकार हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। ट्रैफिक सिग्नल्स फाल ना होने के बायस हादसात भी होना जो है आम शाहराहों पर मामूल बन चुके हैं। अगर मैं बात करूं मुल्तान की आम शाहराहों की, जिसमें कचहरी चौक, चौक कमारा वाला, ईदगाह चौक, नवा शहर चौक और एसपी चौक पर भी ये ट्रैफिक सिग्नल्स नस्ब किए गए थे, लेकिन इनको अभी तक फाल नहीं किया जा सका इंतजामिया की जानिब से। इसी हवाले से हमारे साथ मोटरसाइकिल सवार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनको किन मसाइल का सामने क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हम आपकी वसादत से ना गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि अगर ये इशारों के ऊपर, चौकों के ऊपर ये इशारे नस्ब किए गए हैं तो कम से कम इनको फाल तो कर दें। हर चौक पर इसी तरह ट्रैफिक बेहंगम हो रही है, ट्रैफिक फंस जाती है। इशारे अगर चल रहे होंगे, ट्रैफिक इशारे सिग्नल, तो मेरे ख्याल है ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने अगर इतना खर्चा करके इनको लगवाया तो फाल करना भी तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और ये चौक के अंदर ये देखे कार स्टैंड बना रखा हुआ है, ये रास्ता है, इस रास्ते से ब्लॉक हो रही है, आने जाने वाले मरीज तंग हो रहे हैं, हम बूढ़े आदमी तंग हो रहे हैं, औरतें तंग हो रही हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेहरबानी करके इंतजामिया ये थोड़ा सा तो ये चौक को तो क्लियर कराए। अगर नहीं तो एक कांस्टेबल खड़ा करके, ये इशारे बंद हैं तो वो कांस्टेबल इधर से रहनुमाई करे आवाम की, मेहरबानी। इंतजामिया से मुतालबा करते दिखाई देते कि लिहाजा जल्द से जल्द जो है इन ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल किया जाए ताकि ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल किया जाए। बहुत शुक्रिया राना बिलाल।